Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting a 9th lecture. I'm your instructor Sayyida Arusa. Students, we are going to start a new topic, financial statement analysis. Class, in previous lecture we discussed about the basic financial statements, which includes income statement, balance sheet and cash flow statement. We talked about the different components in these statements and how these components are helpful in financial analysis. This is our today's lecture outline, and in today's lecture we will discuss about the financial statement analysis tools. We will particularly talk about comparative financial statement analysis, which include year-to-year change analysis and index number trend analysis. A variety of tools designed to fit specific needs are available to help user analyze the financial statements. Some basic tools of financial analysis are comparative financial statement analysis, common size financial statement analysis, ratio analysis, cash flow analysis, and valuation models. Class, this is a flowchart of analysis tools for financial statement analysis. And this chart is specially designed to make you understand that how there are different types of tools of financial statement analysis and how these tools are further categorized into different techniques, and this is how we will study these tools and techniques one by one in our today's lecture and our upcoming lecture. Let's start with the comparative financial statement analysis. Comparative, as the name suggests, that it includes comparison. जैसे कि इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और इसमें हम बैलेंस शीट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कैश फ्लो का भी कंपैरिजन कर सकते हैं ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स. और जब हम कंपैरिजन टाइम पीरियड की बेस के ऊपर करेंगे तो हमें एक ट्रेंड शो होगा ओवर द टाइम. वो अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, और वो ट्रेंड हमें ये एनालिसिस करने में हेल्पफुल होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ जा रही है, वेदर इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेल्स रेवेन्यू किस तरफ जा रहे हैं, हमारी लॉसेस या कॉस्ट लॉस हो रहा है तो वो उसकी क्या ट्रेंड है उसके अंदर, और एक्सपेंसेस का क्या ट्रेंड है, कॉस्ट का क्या ट्रेंड है. तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस स्टेटमेंट जो है वो हमें ओवर द सेवरल पीरियड के ऊपर एक डायरेक्शन शो करता है, एक स्पीड शो करता है, एक ट्रेंड शो करेगा. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो रेफर्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको. There are two techniques of comparative analysis are especially popular in financial statement analysis. First one is year-to-year change analysis and second one is index number trend analysis. सबसे पहले हम year-to-year change analysis को देखेंगे. Comparing financial statements over relatively short time period, 2 to 3 years, is usually performed with the analysis of year-to-year change in individual accounts. ईयर टू ईयर चेंज के अंदर हम 2 या 2-3 साल का शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर हम स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि ईयर टू ईयर उसके अंदर उन स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चेंज आया है. और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर जब भी हमें एनालिसिस करना होता है 2 साल 3 साल के ऊपर, तो हम ये बहुत ही इजी टेक्निक है जो कि हमें एक स्नैपशॉट दे देता है अबाउट द चेंज ओवर द 2 ईयर और 3 ईयर टाइम पीरियड. बहुत ही अंडरस्टैंडेबल टेक्निक है, बहुत ही मैनेजेबल टेक्निक है. बट इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग पीरियड्स के लिए, टाइम पीरियड्स के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. Another advantage of using this technique is that you can have the change in form of monetary terms के अंदर भी आपको change मिलेगा, plus you can have a change in percentage value. कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर चेंज पता चले, ईयर टू ईयर चेंज कितना आया है मॉनेटरी टर्म्स डॉलर वैल्यू के अंदर,
या रुपीज वैल्यू के अंदर, तो वो भी आपको इस टेक्निक के थ्रू पता चल सकता है। एडिशनली अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कितना है ओवर द ईयर, तो आपको परसेंटेज वैल्यू भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसके अंदर दो फॉर्मूलाज हैं। डॉलर चेंज मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अगर हम वैल्यू को चेंज ईयर टू ईयर चेंज देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए अमाउंट इन करंट ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर। करंट ईयर जो हमारा करंट ईयर चल रहा है जिसका डिफरेंस हम देखना चाह रहे हैं प्रीवियसली जो हमारा बेस ईयर जो हमने सेट किया है कि उस साल से आज के साल में हमें कितना चेंज है, कितना हमने प्रोग्रेस किया है या कितना फॉर्म ने उसकी प्रोग्रेस में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है जितनी सेट टारगेट्स थे, तो वो चेंज हमें बेस फिगर के साथ हम उसको कैलकुलेशन उसको कंपेयर करेंगे तो हमें वो चेंज नजर आएगा डॉलर टर्म के अंदर या मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। अगर हम उसको परसेंटेज चेंज देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इन द करंट ईयर माइनस अमाउंट इन द बेस ईयर, कि जिस ईयर के साथ आपने उसका कंपैरिजन कर रहे हैं ओवर अमाउंट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। Here we are multiplying this with the 100 to get the percent absolute number of in percentage, तो इसलिए इसको 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हुए ईयर टू ईयर चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Here we have this question from the following balance sheet of ABC Limited, prepare a comparative statement. ये एक बैलेंस शीट है ABC लिमिटेड की और हमने इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट करनी है ईयर टू ईयर चेंज और जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी इसको करना है कैलकुलेशंस और इसकी हमने परसेंटेज के अंदर इसकी कैलकुलेशंस भी वो करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद illustration of this question, जहां पे हमने ईयर टू ईयर चेंज को कैलकुलेट करना है और परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना है। As you can see that this is on the left side we have a balance sheet particulars including liabilities and assets and और इन particulars के अगेंस्ट इनकी 2019 की फिगर गिवन है और 2020 की फिगर गिवन है। Now this 2020 is our current year and 2019 is our base year, कि जिस ईयर के साथ हम 2020 का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेड के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी का कंपोनेंट है जिसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस की फिगर्स मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल, जहां पे 2019 में हमारे पास शेयर कैपिटल जो था वो 5 लाख था और 2020 में हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो 7,50,000 है। सो हमने करंट ईयर में से जो बेस ईयर है उसको माइनस करना है, तो हमारे पास ईयर टू ईयर चेंज जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आएगा वो है 7,50,000 माइनस 500, 2,50,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस का चेंज जो है वो है 2020 में 5 लाख और 2019 में 3 लाख, तो द नेट डिफरेंस इज 2 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख। द नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे देखें कि 2019 में कोई फिगर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन 2020 में 1 लाख की फिगर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की। तो करंट में से हमने प्रीवियस को, जब प्रीवियस 0 है तो आपके जो 1 लाख माइनस 0 1 लाख। The next one is trade payables. We have figure of trade payables in 2019 is 2 lakh and in 2020 is 1,50,000। मीन्स कि हमारे ट्रेड पेबल्स 2020 में कम हो गए थे 50,000। तो जब
2020 से हम 2019 की फिगर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट फिगर आएगी वो होगी 50,000 बट नेगेटिव। एंड फाइनल जो टोटल लाइबिलिटीज है हमारे पास वो 15 लाख 2020 के अंदर थी और 10 लाख 2019 के अंदर थी। तो द नेट डिफरेंस इज 5 लाख। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं और फिक्स एसेट की फिगर 2020 में 9 लाख थी और 2019 में 5 लाख थी। द नेट डिफरेंस इज 4 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास 2020 में 3 लाख था, 2019 में 1 लाख था। द नेट डिफरेंस इज 2 लाख। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हमारे पास 2019 में 1 लाख थी और 2020 में भी हमारे पास इन्वेंट्री 1 लाख थी। द नेट डिफरेंस इज 0। ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 2019 में 2 लाख थे लेकिन 2020 में हमारे पास रिसीवेबल्स नहीं है, तो 2020 की फिगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और 2019 की फिगर है, तो वो जब आप उसको करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। 0 माइनस 2 लाख, तो हमारे पास फिगर जो है वो 2 लाख नेगेटिव में आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2020 में हमारे पास 2 लाख के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे जबकि 2019 में 1 लाख के हैं। द नेट डिफरेंस इज 1 लाख। एंड अगेन जो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो उसका नेट डिफरेंस जो है वो 5 लाख होगा क्योंकि हमारे पास 2020 में 15 लाख थे और 2019 में 10 लाख थे। द नेट डिफरेंस इज 5 लाख। So class, with absolute dollar, in terms of absolute dollar change, जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ईयर टू ईयर चेंज, उससे हमें ये नजर आ रहा है दैट शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, रिजर्व्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो जो है वो उसके अंदर 1 लाख है, इंक्रीज हुई है और जो ट्रेड पेबल्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट हमारे इंक्रीज हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं, इन्वेंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हुए हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज हुए हैं। अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि परसेंटेज एब्सोल्यूट परसेंटेज कितना चेंज आया है तो उसकी कैलकुलेशंस हम करेंगे। इन्हीं फिगर्स को जो हमने जिसके लिए हमने ये देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला जो है परसेंटेज चेंज का अमाउंट इन करंट ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर ओवर अमाउंट इन बेस ईयर इनटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट ईयर टू ईयर चेंज जो 2,50,000 2.5 लाख था उसको हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर के साथ जो कि 5 लाख है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आता है 50%, which is the net percentage over year 50%. The second one is reserve and surplus की फिगर के अंदर कितना चेंज आया है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो हमारे पास नेट चेंज जो है वो 66.67% है। अब 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो थी वो हमारी 1 लाख 2019 में नहीं थी, 2020 में 1 लाख थी और नेट चेंज 1 लाख का था, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, परसेंटेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस फिगर अवेलेबल नहीं है। ट्रेड पेबल्स 2019 में 2 लाख थे और 2020 में 1.5 लाख थे। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो 50,000 का ईयर टू ईयर चेंज डॉलर अमाउंट के अंदर आया और नेगेटिव फिगर थी, और अब इस नेगेटिव फिगर को जब हम इसके बेस ईयर से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई विद 100, तो
तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो भी नेगेटिव परसेंटेज होगी, 25% डिक्रीज। और टोटल लाइबिलिटीज के अंदर जो हमारा परसेंटेज चेंज आया है वो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 50%। अब हम कैलकुलेशन परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे एसेट्स के साथ। एसेट्स फिगर को फिक्स एसेट्स की हम फिगर की कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4 लाख की ईयर टू ईयर चेंज था। इस 4 लाख की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 80%। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईयर टू ईयर 2 लाख का चेंज था। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 200%। अब जो चेंज अमाउंट है उसको जरूरी नहीं है वो 100 से ज्यादा भी परसेंटेज के अंदर चेंज आ सकता है, तो ये 200% इसके अंदर चेंज आया है। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं था और तो ये 0% इसका चेंज है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमने देखा कि 2020 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं थे और ये नेट चेंज जो ईयर टू ईयर था वो 2 लाख नेगेटिव में था। तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 तो हमारे पास जो नेट चेंज आया वो भी नेगेटिव में होगा 100%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि 2019 में 1 लाख, 2020 में 2 लाख एंड द नेट चेंज इज 1 लाख। 1 lakh divided by 1 lakh into 100, 100% change. And again, total liabilities, total assets का जो change होगा वो 50% है। अभी हमने ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस इसका इन स्टेटमेंट्स का किया है, तो हमें ये अब आइडिया हो रहा है दैट शेयर कैपिटल के अंदर हमें 50% का राइज मिला है। रिजर्व्स जो है वो 66.67% जो है उसमें इंक्रीज आया और ट्रेड पेएबल जो है वो उसके अंदर 25% का फॉल है या उसके अंदर डिक्रीज है। तो वी कैन इजिली से दैट शेयर कैपिटल इंक्रीज इट मीन्स कि न्यू फाइनेंसिंग हुई है और आपका प्रॉफिट जो है वो भी राइज आया है उसके अंदर। रिजर्व्स के अंदर आपका 66.67 का इंक्रीज है और ओवरऑल बैंक जो है उस बैंक की बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर अपवर्ड टेंडेंसी शो हो रही है। लोन्स जो है वो कम है, रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब जब फाइनेंसिंग यहाँ पे इंक्रीज कर रही है इट मीन्स कि इसका इम्पैक्ट जो है अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर होना चाहिए। तो वी कैन इजिली ऑब्जर्व दिस दैट फिक्स एसेट हैज बीन इंक्रीज 80%। तो जो फाइनेंसिंग का इंक्रीज है वो हमें उसकी यूटिलाइजेशन जो है उन फंड्स की वो फिक्स एसेट्स के अंदर नजर आ रही है। प्लस आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर स्पेयर फंड्स या सरप्लस फंड्स जो है वो 200% का इंक्रीज है। सो हम इसको इस तरह भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपने फाइनेंसिंग की है फर्म ने उसकी यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, प्लस आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, स्पेयर फंड्स अवेलेबल हैं, बट अब अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। Another point is that इन्वेंट्रीज को देखें तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं हुई। हम इस बेस के ऊपर ये बात कह सकते हैं कि जबकि हम यूटिलाइजेशन फिक्स एसेट्स के अंदर फंड्स की है बट इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं हुई, इट मीन्स कि अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली फिर आपकी इन्वेंट्री के अंदर भी राइज आना चाहिए। अगर आप इन्वेंट्री के अंदर राइज नहीं आएगा तो यू विल बी शॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपका प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको इन्वेंट्री फिर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स के अभी प्रोजेक्ट जो है न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हुए, दैट्स व्हाई आपकी इन्वेंट्री के अंदर हमें कोई चेंज जो है वो नजर नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल की फिगर को देखें दैट देयर इज एन
100% डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो इट मीन्स के बिजनेस ने एक जो डिसीजन लिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डिसीजन है कि आपका जो है सेल्स ऑन क्रेडिट आपने कट डाउन कर दी, आपने ज्यादा से ज्यादा सेल्स जो है वो ऑन कैश रखी हुई है, या आप क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप सेल्स नहीं कर रहे, इसलिए आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं ओवर द टाइम, एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो आपके उसके अंदर सफिशिएंट इंक्रीज नजर आ रहा है 100% का। ओवरऑल कंपनी जो है वो उसका उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है फ्रॉम 2019 टू 2020। फेवरेबल चेंजेस जो हैं वो हम देख सकते हैं कंपनी के अंदर। फाइनेंशियल पोजीशन इसकी बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन बेहतर हो रही है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि आपने अभी तक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया। So इस comparative analysis, year to year change analysis से we got some vital information about or hidden information about the company कि जो हमें वैसे बैलेंस शीट को देख के आइडिया नहीं होता until unless हम उसको उसके बेस ईयर के साथ जब तक कंपेयर ना कर लें। So इस तरह हम कोई भी 2 साल का बैलेंस शीट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कैश फ्लोज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है इस एनालिसिस टेक्निक की, दैट एक तो इसको आप वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही यूज कर सकते हैं, लाइक 2 से 3 साल के का कंपैरिजन ही कर सकते हैं विद ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस की हेल्प से। और सेकेंडली जब आपकी बेस फिगर जो नेगेटिव अमाउंट अगर आपकी बेस फिगर के अंदर है और पॉजिटिव अमाउंट आपकी जो करंट फिगर है उसके अंदर है, तो आप परसेंटेज को कंप्यूट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पीछे यहाँ पे देखा भी कि जब अगर आपकी कोई बेस फिगर मिसिंग है और आपकी करंट ईयर के अंदर फिगर है, तो तब भी आप जो है वो परसेंटेज को कंप्यूट नहीं कर सकते। ये हमने इस एग्जांपल के अंदर भी देखा, जहां पे हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2019 में नहीं थी लेकिन 2020 के अंदर थी। नेट चेंज 1 लाख का था, बट उसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सके। तो ये एक शॉर्टकमिंग है इस टेक्निक की। अनदर पॉइंट इज जहां पे आपकी बेस फिगर जो है वो बहुत स्मॉल हो और आपकी करंट ईयर की फिगर बहुत लार्ज हो, तो आपको एक सिग्नल ये मिलता है कि आपका एक लार्ज चेंज का सिग्नल मिलता है जब आप उसकी कैलकुलेशंस इन परसेंटेज के अंदर करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर बायसनेस आ जाती है। अगेन अनदर लिमिटेशन इज दैट व्हेन एन आइटम हैज अ वैल्यू इन द बेस पीरियड एंड नन इन द नेक्स्ट पीरियड, कि आपके पास बेस पीरियड के अंदर तो वैल्यू है लेकिन नेक्स्ट पीरियड करंट ईयर के अंदर नहीं है, तो वो आपको 100% का डिक्रीज शो होगा। जैसा कि इस एग्जांपल इस इलस्ट्रेशन के अंदर भी हमने देखा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे पास बेस फिगर गिवन है, बट करंट ईयर के अंदर फिगर नहीं है, तो 100% का डिक्रीज हमें शो हो रहा है। These points are underscored in illustration in next slide. इन्हीं limitation points को हम इस illustration के थ्रू भी देखते हैं कि जो complications arise होती हैं जब हम year to year analysis करते हैं। net income अगर तो नेगेटिव होगी, लॉस के अंदर होगी, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर होगी। सो पीरियड 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू है $4,500 लॉस के अंदर, और पीरियड 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1,500। तो हमने जब 1,500 से 4,500 को माइनस करेंगे, 4,500 ऑलरेडी माइनस फिगर है, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है 6,000। 1,500 माइनस इंटू माइनस ऑफ 4,500, तो 6,000 की फिगर आएगी। और ये नेट चेंज है ईयर टू ईयर अमाउंट के टर्म्स के अंदर, और इसकी फिर परसेंटेज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी बेस फिगर है वो नेगेटिव है, तो वो परसेंटेज कैलकुलेशन इसकी नहीं हो सकती। देन कम्स द टैक्स एक्सपेंस।
टैक्स के अंदर जो आपका फर्स्ट पीरियड की फिगर है जो वो है 2000, बेस पीरियड की फिगर 2000 है, और जो आपका करंट ईयर है वो नेगेटिव फिगर है। तो नेगेटिव फिगर -1000 -2000 जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3000, जो कि माइनस माइनस प्लस होके, बट द साइन वुड बी नेगेटिव, और वो लॉस के अंदर होगी, और वो नेगेटिव फिगर होगी, और वो 3000। उसकी भी हम परसेंटेज कैलकुलेशंस नेगेटिव फिगर की हम नहीं कर सकते उसकी कैलकुलेट। देन कम्स कैश। बेस पीरियड के अंदर हमारे पास कैश की अमाउंट है $10, और करंट ईयर में हमारे पास अमाउंट है $2010। तो $2010 -10 हमारे पास 2000 की फिगर आएगी। और हमने ये कहा था कि जब बेस पीरियड में हमारे पास अमाउंट जो है वो उसकी फिगर स्मॉल हो तो एक लार्ज सिग्नल हमें ये मिलता है कि एक बहुत ग्रैंड चेंज जो है वो, तो ये 20,000 परसेंट का हमें जो है वो एक चेंज जो है वो नजर आ रहा है। देन कम्स नोट्स पेएबल। बेस पीरियड में हमारे पास नोट्स पेएबल की फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन करंट पीरियड के अंदर 8,000 की फिगर है, और 8,000 माइनस 0 8,000, और उसकी भी अगेन हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 8,000 को हमने बेस फिगर के साथ डिवाइड करके इंटू 100 करना होता है, तो वो अवेलेबल नहीं है। देन कम्स नोट्स रिसीवेबल। बेस पीरियड के अंदर 10,000 के नोट्स रिसीवेबल हैं, जबकि करंट ईयर के अंदर हमारे पास ये फिगर नहीं है। तो जब उसका नेट चेंज होगा तो वो 10,000 है, और उसकी परसेंटेज जो हम निकालेंगे वो 100%, अगेन नेगेटिव, उसकी परसेंटेज भी नेगेटिव होगी। सो इस तरह ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इस टेक्निक के साथ, जिसकी वजह से समटाइम अगर हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर इस तरह के कोई फैक्टर्स या कंपोनेंट्स की फिगर्स इस तरह की हों, तो फिर हमें इस टेक्निक के अलावा कुछ और टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है। फिर हम इन टेक्निक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते फॉर एनालिसिस। So class, this is all about our today's lecture, and any question and queries are most welcome. And thanks for joining. Allah Hafiz.